friends, my name is Chitresh Kapoor and welcome to Borders and Beyond. In geopolitics, every move carries a very strong message. And over the last 1 week, we have seen Donald Trump has been giving a particular message after message, and our Prime Minister, what he has done, he has given a counter message and has very categorically informed that this is India of 2025. We will not go down to pressure, and in fact we will do what our national demands are. And अगर आपने नोट किया होगा लास्ट 24-48 घंटे में our national security advisor Ajit Doval ji, he has gone to Moscow. There is a very specific message that Indian government is passing on to the United States of America. मेरे पिछले पॉडकास्ट में आपने देखा होगा वेयर वी हैड कैटेगोरिकली मेंशन why Trump is behaving the way he is. I'm going to once again help you understand. Trump की कुछ unreasonable demands हैं. One of the demand is that he wants our Prime Minister to open the farm products and dairy for him. And very categorically, I had mentioned that no Prime Minister now or in the past will ever do it. और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज उसका ईगो बहुत ज़्यादा है, उसको ना सुनने की आदत नहीं है. उसने वो डिसाइड कर लिया है कि उसको रीज़न चाहिए इंडिया को पोक करने के लिए. तो उसने एक रीज़न बनाया डेयरी का, दूसरा रीज़न बनाया उसने फार्म का. उसने कुछ टाइम पहले F-35 इंडिया को ऑफर किया, इंडिया ने पोलाइटली मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए. सो अब उसको कुछ एक नया रीज़न चाहिए था वाई उसको टैरिफ लगाना है. फिर उसने बोल दिया कि क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल ले रहा है रशिया से, उस वजह से हम 50% टैरिफ लगाएंगे. सो ऑल ऑफ दीज रीजंस हैव पुट टुगेदर और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने हम पे 50% टैरिफ लगाया. और इंडिया ने एक बहुत क्लियर मैसेज कर दिया विच इज अ फर्म नो. yesterday आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसका एक बहुत क्लियर एक मैसेज आ गया है. उन्होंने साफ कह दिया है, I am ready to pay the price, but I will not compromise on the interest of farmers, dairy workers and fishermen. So this is a very bold statement which our Prime Minister has given that मुझे जो loss होगा personal elections में, I am ready to take that loss, but हमारे देश को कुछ नहीं होना चाहिए. Now this is a negotiation at its purest form. What India has done is we are protecting our core interests, which are extremely important. Short term पे हमारे को उनका loss होगा, definitely होगा, but in long term what we have told to the bully, which in this case is Donald Trump, that we will not listen to you. We have not done in the past and we are not going to do that in the future. So yesterday our National Security Advisor Ajit Doval ji has visited Moscow. And the message is very loud and clear. Buying crude oil from Russia helps India, and India will continue to do so. And as a matter of fact, इससे पहले जो president था US का, which is Joe Biden, the ambassador of US to India, Eric Garcetti, ने message बहुत clearly दिया था कि India is helping the world by buying oil from Russia. And the reason for that is क्योंकि यूरोप एक एक्सटेंसिव तेल खरीद रहा है from the Middle East और what we call West Asia, and India जब वो ले रहा है oil from Russia, तो वो डिमांड एंड सप्लाई का जो है प्रेशर, अननेसेसरी डिमांड नहीं बढ़ेगी. सो क्रूड ऑयल प्राइसेस आर लो बिकॉज ऑफ दैट. सो बिकॉज ऑफ दिस पर्पसेस, when India is buying oil from Russia, India is actually not only helping its domestic population but also helping international prices जो हैं crude oil के, वो stable रहेंगे. So what India has done is very clearly we have given a message to Washington DC and Brussels. India will not be cornered. Our partnerships are diversified. US interests are not paramount to India. For India, our national interest comes first. So if we have to buy S-400 from Russia, if it is in our national interest, we are going to do that. We are now going to jointly manufacture S-500, hopefully in India. We are going to do that. We are not on US side.
we are certainly not on Russia's side. We are only on India's side, which is something our foreign affairs minister Jaishankar ji also said about a year and a half back. So it's not just India which is getting bullied. अभी ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर लुला, उनको भी कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूमिलिएट करने की बाय 50% टैरिफ्स, एंड डोनाल्ड ट्रंप सेड that Mr. Lula can call me if he wants to, and the Brazilian president very categorically said, if I have to call someone, I will call the Prime Minister Modi. Why should I talk to Trump? Now, why has Donald Trump done this? What is the backstory of this? Now, the backstory of this is Trump demands are not just trade; it is purely political. He wants an ex-jailed former president of Brazil जो है उनको वो छोड़ा जाए. दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ यूएस इंटरफेयरिंग इन अदर कंट्रीज इंटरेस्ट्स. Now it's not just India and Brazil which have faced the brunt. यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, और यूरोपियन यूनियन को मार इसलिए पड़ी बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूरोपियन यूनियन इज वीक, बिकॉज उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हैज़ गॉन डाउन एक्सट्रीमली लो, एंड साइमल्टेनियसली बिकॉज उनकी जो माइग्रेशन प्रॉब्लम है उसकी वजह से व्हाट यूरोप हैड टू डू वाज कि जो भी यूरोप से सामान जाएगा अमेरिका वो 15% टैरिफ पे होगा, बट जो अमेरिका से सामान यूरोप आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अलॉन्ग विद दैट यूएस की एनर्जी जो है, यूएस जो यूरोप लेता है वो यूएस से $750 बिलियन की लेगा, एंड साइमल्टेनियसली व्हाट यूएस हैज बीन सेइंग दैट यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि मैं गार्ड हूं, आई एम प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम रशिया, सो यू विल एंड अप बाइंग $600 बिलियन वर्थ ऑफ इक्विपमेंट्स. सो बेसिकली व्हाट यूएस हैज डन, हमारा सामान आपके यहाँ आएगा विदाउट एनी एडिशनल टैरिफ, आपका सामान यूएस में जाएगा तो उस पर 15% ड्यूटी लगेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एनर्जी का भी सामान यूएस से लेना होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको मिलिट्री गियर भी खरीदना पड़ेगा. सो इट इज अ कंप्लीट win-lose situation where America is winning and Europe is losing. And at this point of time, जो बाकी यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली जो फ्रांस के ऑफिशियल्स हैं, they called this deal a dark day. And the Hungary प्राइम मिनिस्टर जो हैं विक्टर ने कह दिया कि the Trump ate von der Leyen for breakfast. So this is a very clear message that what Donald Trump does is पहले वो टैरिफ बढ़ा देता है यूरोप पे 30%, लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि मैंने 30% देना है, फिर वो जाके नेगोशिएट करके लाता है 15. तो होता क्या है, यूरोपियन यूनियन और जो भी दूसरी तरफ नेगोशिएटर है वो ये सोच रहा है कि चलो मैंने 30 से 15 कर दिया, लेकिन वो ये भूल गया कि उसका सामान अब 15% एक्स्ट्रा महंगा बिकेगा, डिमांड उसके प्रोडक्ट से कम हो जाएगी, वेयर एज अमेरिका अपना सामान फ्रीली यहाँ बेचे. आपको एक और चीज मैं बताना चाहता था, रशिया जो है ओवर द लास्ट ईयर हैज सोल्ड वर्थ 900+ बिलियन यूरोस ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट्स, जिसमें यूरोपियन यूनियन अकाउंट्स फॉर 23%. सो यूरोपियन यूनियन इज स्टिल नंबर 1, इंडिया कम्स टू एट 13%, एंड यूएस इज स्टिल एट अबाउट क्लोज टू $3 बिलियन. Now, yesterday what happened, a journalist asked Donald Trump कि आप तो टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया पे क्योंकि वो रशिया से सामान खरीद रहा है, बट जब यूएस खुद खरीद रहा है रशिया पे, आपको उसका क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप इन अ वेरी क्लासिक वे, उसको इसका आंसर नहीं पता था. वेरी क्लियरली ही सेड, आई विल गेट बैक टू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन. So what are the lessons that we are learning from this? You know, the lessons in negotiations are keep your red lines strong and आप उसको stable रखें. इंडिया अपनी रेड लाइन बहुत स्ट्रांग और स्टेबल रख रहा है कि ये हम चीज नहीं होने देंगे और उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे. फॉर अस, आवर फार्मर्स, आवर डेयरी के लोग जो हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अस, और हम उनके इंटरेस्ट, हमारे नेशनल इंटरेस्ट आर right at the top. Now the second learning from this is
हाउ टू यूज टाइमिंग एंड अलायंसेज एज लेवरेज। इंडिया ने बहुत स्ट्रैटेजिकली विद इन अ डे व्हेन डोनाल्ड ट्रंप डिड दिस, उसके नेक्स्ट डे ही अजीत डोवाल वेंट टू मॉस्को। वंस अगेन timing is extremely important, and the third and probably the most critical message is avoid dependency। जो कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है वो हमेशा दबके रहेगा। यहाँ पे ये हुआ, यूरोपियन यूनियन को प्रोटेक्शन चाहिए यूएस से, वो वेलफेयर स्टेट बन के बैठे हुए हैं कि बंदे को काम करने की जरूरत नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आ रहा है, बच्चे पैदा करोगे तो सरकार देगी। सो एट द एंड ऑफ द डे जो बंदा काम कर रहा है उस पर वो हमेशा रहेगा कि मुझे अपने लिए तो काम करना है, बट जो काम नहीं कर रहा है उसको भी मुझे कमा के खिलाना है। सो विच इज वाई नाउ यूरोप was forced to surrender. For almost 2-3,000 years, Europe has always been very aggressive, but certainly for the last 20-30 years, post World War को तो 80 साल हो गए, but over the last 20-30 years, यूरोप ने अपनी इनोवेशन के लिए, जिसके लिए जाना जाता था, अपनी वेरी हाई इन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता था, अब वो उनसे हट के फ्री में खाओ, फ्री में रहो, आप बच्चे पैदा करते रहो, सरकार आपको खिलाएगी, आपको काम करने की क्या जरूरत है, काम करोगे तो टैक्स दोगे, इसकी जगह अगर काम नहीं करो तो आपको फ्री में आपको रहना मिलेगा। सो इन सब की वजह से दिस इज द थर्ड लेसन विच इंडिया ऑल्सो हैज टू लर्न। नाउ फेस्टिव का सीजन चल रहा है इंडिया में, इंडिया को अब राखी बिक रही है, राखी का सामान कहाँ से आता है? चाइना से आता है। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद अभी गणेश चतुर्थी होगी, गणेश जी का सारा सामान कहाँ आ रहा है? चाइना से आ रहा है। So there is something fundamentally wrong in our manufacturing system कि हमारे को अपनी बेसिक चीजें, राखी हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, उसके बाद दिवाली की लाइटिंग होगी, ये सारा सामान हम चाइना से ले रहे हैं। चाहे वही चाइना है जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर में अपनी मिसाइल्स पाकिस्तान को दी, अपना फाइटर जेट पाकिस्तान को दिया, कोशिश की जितने इंडियन कैजुअलिटीज, इनोसेंट लोग मर सके। जितना हम सामान चाइना से भरकर खरीदेंगे उतना चाइना अमीर होगा। सो वी नीड टू रियली फिक्स दी सिस्टमैटिक फ्लॉज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है एंड वी एज इंडियंस शुड स्टैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड एक बहुत अच्छा काम जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑपोजिशन, हाँ कुछ लोग हैं जो विल ऑलवेज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इवन दो जब काम ठीक भी हो रहा है, उनको छोड़ के बैरिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ द कंपटीशन, मेजॉरिटी ऑफ द ऑपोजिशन, नॉट कंपटीशन, ने इंडिया का और इंडियन गवर्नमेंट का साथ दिया है। एंड फॉर दैट वी हैव टू थैंक डोनाल्ड ट्रंप। सो आई लाइक टू से लेट्स ऑल कलेक्टिवली मेक श्योर हाउ कैन वी मेक इंडिया बेटर, एंड वी शुड नॉट फंड कंट्रीज लाइक चाइना जो कि हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे। बिकॉज पाकिस्तान से हमारा जंग होना है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद जंग होना है, एंड जितना हम चाइना को पैसे दे रहे हैं फॉर बाइंग आवर प्रोडक्ट्स, उतना पाकिस्तान के पास इक्विपमेंट्स पहुंचेंगे। सो दैट वुड बी ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड। जय हिंद।